ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਐਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਐਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 74-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 74 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। 10 ਲੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 1 ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਵਾਏ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਗਵਾਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਦੌਲਤ ਗਵਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਗਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शे। करतारपुर साहब कोरीडोर खुलिया, एक उम्मीद पैदा हुई साडे अंदर कि हुण असीं बिना वीज़े तो करतारपुर साहब जाके गुरु नानक साहब जी के स्थान के दर्शन कर सकांगे। कोविड कारण कोरीडोर बंद करता। कोविड का दौर थोड़ा मठा पिया, हिंदुस्तान भर के धार्मिक स्थान जिहड़े आ वो खोल दिते गए, मंदिर भी, मस्जिदां भी, गुरुद्वारा साहब भी, संगत आउण लग पई गुरुद्वारे साहिबान दे विच। लेकिन करतारपुर कोरीडोर नहीं खोलिया। करतारपुर कोरीडोर नहीं खोलिया। और कई बार क्या है कि 5 बंदियां नूं, 10 सिखां नूं, 20 सिखां नूं, 50 सिखां नूं कोविड रिपोर्ट के सहित, लेकिन इजाजत तो दिओ दर्शन करन दी। जिहड़ी कोविड टैसट की रिपोर्ट है तुसीं वो मंग लो। तुसीं ज़्यादा सिख ना भेजो, 5 भेज दिओ, 10 भेज दिओ, 20 भेज दिओ, 50 भेज दिओ रोज़, लेकिन भेजो तो सही। कोरीडोर दोबारा खोलो तो सही, लेकिन नहीं खोलिया। अज भारत के लोग कनेडा जा सकते हैं, भावें बाया उन्होंने किसी होर कंट्री जाना पैंदा, लेकिन जा सकते। इंग्लैंड खुल गया, अमेरिका खुल गया। करतारपुर कोरीडोर की खोलना सी, वाघा बार्डर भी बंद करता। इस वरे असी ननकाना साहब का 100 साला शताब्दी समागम जिहड़ा है वो उलीकिया। ननकाना साहब की धरती के उत्ते, पाकिस्तान के अंदर और भारत की धरती के अंदर गोदरपुरा दे विच, जिथे लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल के परिवार बैठे ने, परिवार बैठे, वीज़े लग गए। जिहड़े जथे ने जाना सी वीज़े लग गए, संगतां दे वीज़े लग गए, रागी जथियां दे वीज़े लग गए, कथावाचकां दे वीज़े लग गए। लेकिन ऐन आखिरी मौके दे उत्ते कुछ घंटे पहला भारत सरकार ने बार्डर खोलण तो इनकार करता। असीं किवें कह दईए कि कल आज़ादी दिहाड़ा है। 100 साल बाद ननकाना साहब का शहीदी साके का शताब्दी समागम कर रहे सी असीं, पर वाहिगुरू की ऐसी रजा हुई, श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते समागम किया। गोदरपुर दे विच वड्डा समागम किया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, और श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते समागम किया। ते उस समागम दे विच पंथ नूं जिहड़ा है, गुरु खालसा पंथ नूं जिहड़ा है, ये आदेश किया कि जिन्ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने, जिन्नियां भी साडियां जथेबंदियां, सारे ही 100 साला ननकाना साहब के शहीदी साके नूं समर्पित समागम करो। और असीं 2 समागम करने सी, एक पाकिस्तान दे विच ननकाना साहब और एक करना सी असीं पंजाब दे विच गोदरपुर। 2 समागम करने सी, लेकिन समागम 700 होया। 700 दस्सिया सी भारत सरकार ने कि तुसी एक समागम ते रोक लाई, असीं 700 समागम किया, ते हर समागम दे विच इस गल का उल्लेख किया कि सानू रोकिया गया। साध संगत जी, साडे गुरु ने सानू समर्थ बनाया है। समर्थ इको ही गल कही है कि जे मुथाजी झलनी है, मुथाज बनना है, तो केवल अकाल पुरख का बनना है या गुरु का बनना है, वरना किसी का नहीं बनना है। गुरु का महताज बनना है, अकाल पुरख का मुहताज बनना है,
होर किसी का मोहताज नहीं बनना। अज साडा गुरु ते भरोसा जिहड़ा है वो कायम रहना चाहिए। जो गुरु ते भरोसा है, सानू किसी दे मुथाजी की जरूरत नहीं है। असी संपन्न हाँ, सानू गुरु ने संपन्न बनाया, गुरु ने संपन्न बनाया। 47 तो ਜਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਲਿਜਾ ਕੇ। किसी नूं राजस्थान के अंदर, किसी नूं तराई के अंदर, किसी नूं साउथ के स्टेटां दे विच, किसी नूं महाराष्ट्र दे विच, किसी नूं मध्य प्रदेश दे विच। लेकिन अज वो सिख जिहड़े ने बड़े साधन संपन्न ने और उन्होंने बिजनेस के अंपायर खड़े किए हुए ने। चाहे बॉम्बे के सिख है, चाहे हैदराबाद के सिख है, चाहे कैलकटा के सिख है, चाहे लखनऊ के सिख है, चाहे तराई के सिख है, चाहे राजस्थान के सिख है। जदों बिठाए ना लिजा के राजस्थान के अंदर तो उन्होंने जमीनों के उत्ते कुछ नहीं सी हुंदा। जदों बिठाए जाके तराई के खेत्र के विच उत्ते जंगलों तो सिवाए कुछ भी नहीं सी। लेकिन अज फसलां लहलहाउंदियां सिखां की मेहनत का बदौलत, मेहनत की सिखां ने गुरु के भरोसे। तो जदों कश्मीर के सिख मुजफ्फराबाद तो इधर आए तो इत्थे आके भी उन्होंने तरक्कियां कीतियां, प्रॉपर्टियां बनाईयां, कामयाबियां हासिल कीतियां। जे सिख माइग्रेट होके यूरोप दे विच गए, कनाडा दे विच गए, अमेरिका च गए, इंग्लैंड दे विच गए तो उत्थे बड़े बड़े बिजनेस के अंपायर खड़े किए। होटलिंग दे विच, ट्रांसपोर्ट दे विच, कंस्ट्रक्शन के कामों दे विच, रियल एस्टेट के कामों दे विच अज अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड दे विच सिखां दी धाक है। क्यों? खाली हथ गए, खाली हथ $10 डॉलर लैके गए जेब दे विच, सिर्फ $10 ते अज लाख डॉलर महीने का कमाई है। उन्होंने मेहनतां कीतियां, मेहनतां तां कीतियां ही, पर सब तो वड्डा जिहड़ा उन्हां दी तरक्की का राज है ना, वो है उन्हां दा गुरु दे उत्ते भरोसा, गुरु दे उत्ते विश्वास। तराई खेतर, राजस्थान के खेतर दे किसी बजुर्ग नूं जाके पुछ लो, नौजवानों को शायद ना पता हो, लेकिन बजुर्ग को पूछो कि जो तुसी इस इलाके च आए सी, किस तरह आए सी, की सी, वो तुहानूं दसणगे कुछ नहीं सी। तो फिर इन्नियां वड्डियां ज़मीनां दे मालक किवें बन गए? कहंदे गुरु ने बनाया, गुरु ने बनाया। ये लफ्ज़ तुहानूं सुणन नूं मिले। जिवें रतन सिंह भंगू तो पुछया सी ना, अंग्रेज़ अधिकारी ने, एक्टर लॉनी ने। मैं लास्ट गल कह के समाप्ति करनी है क्योंकि लंबा समा हो गया, रागी सिंघां ने कीर्तन भी करना है। जो अंग्रेज़ आए तो उन्हों दियां नज़रां पंजाब के उत्ते सी, पंजाब वाल नज़रां उन्हों दियां लगियां सी कि इहनूं असीं कैप्चर करना। अपने दूत भेजे पंजाब दे विच उन्होंने, और उन्होंने दूतां ने आके पंजाब का राज प्रबंध देखा, सैनिक प्रबंध देखा, बड़े हैरान होए। उन्होंने मुगलों को पूछया, जिहड़े दिल्ली दे विच हारे हुए मुगल्स, कि यमुना तो पार ये किहड़ी कौम है जिहड़ी राज कर रही है? अंग्रेज़ पूछते ने दिल्ली दे हारे हुए मुगल शासकों नूं कि यमुना तो पार किहड़ी कौम है जिहड़ी राज कर रही है? कहंदे जी सिख है। कहंदे सिख कौन है? ते पता उन्होंने की जवाब दिता मुगलों ने, जिहड़े हारे हुए मुगल सी? कहंदे जी ये उजड़ लोग ने, उजड़ लोग ने, जंगली लोग ने,
बदतमीज़ लोग ने। वो कहते जिस किस्म का ये कौम राज प्रबंध दे रही है, जिस किस्म का इस कौम का सैनिक प्रबंध है, ये जंगली नहीं हो सकते, ये बदतमीज़ नहीं हो सकते, ये उजड़ नहीं हो सकते, ये पागल नहीं हो सकते। पुछिए कि ये जंगलों च रहने वाली कौम विशाल राज भाग दे मालक किवें बनी है। उन्होंने रतन सिंह भंगू नूं पुछया, जो विद्वान सी कौम का, कि रतन सिंह दसो सानू कि तुहाडी जिहड़ी कौम है जंगलों च रहिंदी सी, बियाबानां च रहिंदी सी, अज एडा विशाल शक्तिशाली साम्राज स्थापित करके दुनिया के बेहतरीन ढंग दे नाल चला रही है, इहदा राज की है? किम पातशाही ਸਿੰਘਨ पाई, ਸਿੰਘਾਂ ने बादशाही किवें प्राप्त की है? तो उन्हें इक्को लफज दे विच उत्तर दिता सी कि ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बादशाह गुरु ने बनाया है, गुरु ने बनाया है ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बादशाह। कहते हाँ जी, असी जंगलों च रहिंदे सी, साडे कोले घर भी नहीं सी, घाट भी नहीं सी, जमीन भी नहीं सी, जायदाद भी नहीं सी, एक छोलियां दी मुट्ठी मिलती सी खाण नूं रोज़। फिर एडा राज भाग कित्थों आ गया? कहते जी गुरु ने पैदा करके दिता है, गुरु ने बनाया है, गुरु ने बनाया है। कहते गुरु ने किवें बनाता? कहते जी असी गुरु दे बन गए। प्रोफैसर पूਰਨ सिंह होए ने एक पंथ के अंदर बहुत ही उच्च कोटि के सिख स्कॉलर, ना सुनिया होएगा। वो देहरादून दे विच बैठे सी ते इलाके के जिहड़े सनातनी साधु सी उन्होंने स्वामी कहते सी, स्वामी। एक बारी इलाके के सनातनी जिहड़े साधु सी वो इकट्ठे होकर प्रोफैसर पूਰਨ सिंह को आए तो आके उन्होंने कहन लगे, स्वामी जी आप पर इतनी कृपा है ईश्वर की, हमें ये बताएं कि आप कितना नाम जपते हैं, कितनी बंदगी करते हैं, कितना भजन करते हैं, कितना तप करते हैं। आपके ऊपर बड़ी ईश्वर की कृपा है, कितनी बंदगी है आपकी, कितना तप है, कितना भजन है आपका। तो प्रोफैसर पूਰਨ सिंह जी कहन लगे उन्होंने साधुओं नूं कि ऐ साधु जनों, मेरा कोई भजन नहीं है, मेरी कोई बंदगी नहीं है, मेरी कोई सेवा नहीं है, मेरा कोई सिमरन नहीं है। वो कहते नहीं जी, आप पर इतनी कृपा है ईश्वर की, ये कैसे हो सकता है कि आप भजन ना करें, बंदगी ना करें, सेवा ना करें, सिमरन ना करें, आप पर इतनी कृपा ईश्वर की कैसे हो सकती है? तो प्रोफैसर पूਰਨ सिंह ने एक शब्द किया उन्होंने साधुओं नूं, कहते है साधु जनों, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक परंपरा है कि जदों भी पिता जिहड़ा है वो देखता है कि मैं बजुर्ग हो गया, तो उहदी जायदाद जिहड़ी है उहदे पुत्रां दे विच तकसीम हुंदी है। कहंदे हाँ जी हुंदी है। हर पिता अपने पुत्रां नूं जायदाद दे के जांदा है, किसी होर नूं नहीं दिंदा, वो अपने पुत्रां नूं दिंदा है। जे 2 पुत्र है तो 2 नूं वंडदा है, जे 4 पुत्र है तो 4 नूं वंडदा है। कहंदे हाँ जी, ये तो परंपरा है भारत के अंदर कि हर पिता की जायदाद के विचों हिस्सा जिहड़ा है उहदे पुत्र वंडदे ने, तकसीम करते हैं। कहंदे बस फिर ये समझ लो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे पिता ने, ते मेरे पिता की बंदगी, मेरे पिता का तप, मेरे पिता की भगती दे विचों मैनूं हिस्सा मिल रहा है। मैं अपने पिता का पुत्र बनिया, बस मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पुत्र बनिया, तो जो मेरे गुरु दियाँ कमाइयां ने उहदे विचों मैनूं हिस्सा मिल रहा है। मेरे ते ईश्वर की कृपा है, मेरे ते वाहिगुरू की कृपा है। अज जरूरत है कि असी गुरु दे बन जाइए, फिर जो गुरु दा वो साडा। खंडे बाटे की पौहल छकीए, गुरु दे बन जाइए, गुरु दे बन के गुरु दे भरोसे असी संघर्ष जारी रखिए। यकीन जानियो, गुरु ते भरोसा रख के जे असी संघर्ष करांगे ना, तो असी हथ ऐ करने वाले नहीं होवांगे, असी हथ ऐ करने वाले होवांगे, देन वाले होवांगे, लैण वाले नहीं होवांगे। असी इन्ना भरोसा, इन्ना विश्वास गुरु दे करके वेखियो जे। मैं अंत दे विच
ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।